Hello everyone. Today's topic is dielectric constant. Let's start. Dielectric constant. In previous class, we studied about refractive index and optical rotation, है ना? तो ये हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है. So today's topic is dielectric constant. Dielectric constant is also known as dielectric constant is also known as relative permittivity and is denoted by epsilon tau. This is a symbol for relative permittivity and dielectric constant. And definition of dielectric constant is dielectric constant of a solvent is a measure of its polarity, whether it is polar or non-polar. That should be calculated denoted by its dielectric constant. The higher the dielectric constant of the solvent, more the polar. It is a physical property. The dielectric constant is a physical property. Hence, the dielectric constant is the ratio between the permittivity of a medium, और ये जो permittivity of the medium है इसको हमने ये एप्सिलॉन से डिनोट किया है to the permittivity of the free space. तो ये होता है हमारा free space E naught. The characteristics of the dielectric constant are determined by dielectric constant and इसकी जो value है इसकी कोई unit नहीं होती, there is no unit. So equation for relative permittivity or dielectric constant is तो ये मैंने क्या बताया था आपको, ये है हमारा permittivity of medium, that is permittivity of the medium, and this is permittivity of free space, permittivity of free space, और ये है हमारी permittivity of medium. Okay, then the dielectric constant, तो ये क्वेश्चन, तो इसकी जो dielectric constant है there has no unit. Okay, तो हमारा फॉर्मूला आ गया है E tau is equal to epsilon divided by E. मैं ये हटा देती हूँ सभी को. ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया है यहाँ पे. Okay, then the dielectric constant is affected both by the attractive forces that exist between the atoms and also the molecules. The solvent with have high dielectric constant makes it possible to more effectively screen the attractive and repulsive force between the ions, and the partial charges on molecules of polar solvent interact with and reduce the effective charges on the solute and further decrease the attractive or repulsive forces between the charges on the solute. तो ये था हमारा dielectric constant. Then how to measure the dielectric constant? तो next हम बात करते हैं measurement. Measurement of epsilon यानी कि dielectric constant. It is dielectric constant is measuring the effect of intervening solvent on the electric field between two opposite charge particles. The capacitance between the two plates for holding the test solution between the plates is measured. After that,
measure the capacitance by maintaining the vacuum between the plates. तभी हम लोग बोल रहे हैं ना कि एक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एक फ्री स्पेस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हम दोनों को लेते हैं तो दोनों का रेशियो है, दोनों का रेशियो क्या होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. तो देन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑब्टेन्ड व्हिच इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, जिसको कैपेसिटेंस को हमने डिनोट किया है CAPACITANC. कैपेसिटेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल C. तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर completely filled with the dielectric constants of capacitance of the capacitor filled in a space, तो वो होगा C नॉट. ठीक है, क्या तो ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर फिल्ड विथ स्पेस और वैक्यूम. तो इसकी भी हमारी कैपेसिटेंस की भी हमारी कोई यूनिट नहीं होती है. तो अगर हमें इन केस ऑफ कैपेसिटेंस अगर हम बताएं व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होगा C इज इक्वल टू C0 by C नॉट, और C0 is equal to by T. हमारा फॉर्मूला हो गया ये. अब इस फॉर्मूले में हम बात कर रहे हैं ये C हमें मालूम है, C is the capacitance of using material as dielectric constant in the capacitor. C naught is capacitance using vacuum as dielectric constant, whereas E naught is the permittivity of free space, और permittivity of free space जो है that is constant. तो ये वैल्यू है 8.85 multiplied by 10 to the power raised 12. ये हमारी इसकी यूनिट आ गई है. बाकी ये जो A है हमारा, A इज द एरिया ऑफ द प्लेट, या हम ये भी कह सकते हैं कि पर्टिकुलर कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिस प्लेट को हमने, जो मूवमेंट हो रहा है हमारा एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे है, तो ये प्लेट का सरफेस एरिया. एंड दैट T इज थिकनेस ऑफ द सैंपल. T इज द थिकनेस. कुछ बुक्स में ये H भी दिया हुआ है, यहाँ पे हमने T लिया है. T इज द थिकनेस ऑफ द सैंपल. तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमने बताया व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज बेस्ड ऑन इट्स परमिटिविटी. तो हमारे परमिटिविटी है जिसमें E नॉट एंड E0. ये हमारा E0 है, दैट इज फॉर सैंपल, दैट इज फॉर वैक्यूम. एंड इसका मेजरमेंट करते हैं हम कैपेसिटेंस के फॉर्म में. तो यहाँ पे हमारा जो ये था इसकी फॉर्मूला हो गया है हमारा ये C by C नॉट. तो अगर मुझे ये यहाँ पे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है कंपाउंड इसकी, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया E0 A into T. तो E यहाँ पे E नॉट इज क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है. फिर A सरफेस सेक्शन हमारा एरिया ऑफ सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द प्लेट, एंड T इज द थिकनेस ऑफ द सैंपल. देन नाउ कम्स फॉर एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मेन एप्लीकेशन है दैट इज अ मेजर यूज इन डाइलेक्ट्रिक्स टू द मैन्युफैक्चर ऑफ कैपेसिटर्स. These have many uses including storing energy in the electric field between the plates, filtering out noise from signals as part of resonant circuit, and providing a burst of power to another component. Another applications of dielectric constants is used as relays. It is used in relays on their electrically insulating properties rather than their capacity to store charges. The most obvious of this use of is the insulation of wires, cables, and other electrical appliances. Apart from this, it is used in pharmaceutical field में हम क्या use करते हैं dielectric constant का,
कि अगर हमारा पर्टिकुलर हमने सॉल्वेंट यूज़ किए कर रहे हैं, दैट सॉल्वेंट्स आर यूज इन फार्मास्यूटिकल फील्ड, तो अगर हमें उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मालूम है तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमारा जो कंपाउंड है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा होगा, अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसकी पोलैरिटी के अकॉर्डिंग है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो हाई है, इफ इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज हाई, तो वो जो सॉल्वेंट है दैट शुड बी मोर पोलर। तो हम उसकी पोलैरिटी को चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और उसकी वजह से हम ये भी देख सकते हैं कि अगर मुझे किसी कंपाउंड को किसी पर्टिकुलर पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है तो मैं उन दोनों की कंपैटिबिलिटी को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये हेल्प करता है हमें सॉल्युबिलिटी में। अगर मुझे लगता है कि मुझे इसका उसको सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, तो अगर सपोज हमारा ए ड्रग है और उस ए ड्रग की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अगर सपोज 6.8 समथिंग कुछ है, तो मैं जो दूसरा हमारा बी कंपाउंड होगा वो नियर टू यही होगा, अगर 5 to 6 तो दैट शुड बी सॉल्युबल इन दैट पर्टिकुलर, दोनों आपस में मिसिबल कंपाउंड होंगे। और अगर इनकी पोलैरिटी जो है वो कम होगी या बहुत रेंज जो है वो एक दूसरे से काफ़ी मार्जिन होगा दोनों के बीच में, सपोज एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है और दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है, तो ऑब्वियसली ये दोनों कंपाउंड्स, दोनों लिक्विड्स जो हैं वो आपस में सॉल्युबल नहीं होंगे। तो सॉल्युबिलिटी को भी चेक करने के लिए हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हेल्प करते हैं और ये भी फाइंड आउट करते हैं कि वेदर दैट कंपाउंड इज पोलर और नॉन पोलर। तो ये हम बात कर रहे थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट के लिए ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट। देन डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट मीन्स कि जैसे सपोज एक ये कंपाउंड है और एक कंपाउंड है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज दिस इज सी एंड दिस इज एच, तो इनके बीच में एक मूवमेंट हो रहा है। अब वो मूवमेंट जो है वो ऐसा भी हो सकता है और ये इस टाइप का, मतलब आपस में ये सीजर की तरह भी हो सकते हैं, ये बाहर की साइड पे भी हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं, तो जिनको हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये डाइपोल मूवमेंट हमें इसमें चेक करना है कि कैसा डाइपोल मूवमेंट है, एंड दैट डाइपोल मूवमेंट जो है वो उनकी बॉन्ड एनर्जी को हम उससे फाइंड आउट करते हैं। तो व्हेन नॉन आइडेंटिकल एटम्स सच एज ए and B are joined in a covalent bond, the pair of electrons will be attracted more strongly। तो ये हमारा सपोज ये मैंने से आपको बताया कि ये एक कंपाउंड ये और एक कंपाउंड ये, तो इनके बीच में ये बॉन्ड की लेंथ, तो it will be attracted more strongly to the atom that have higher electronegativity. If A is more electronegative than B, if A is more electronegative than B, it is higher tendency to attract electrons. Obviously जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। Thus the shared pair of electrons is drawn near A, leaving the positive charge on B atom, and molecules become dipolar, then molecules become dipolar। तो ये हमारा जैसे ये A और ये हमारा ये हो गया, यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा। The magnitude of the interaction of the dielectric field is given by the moment of permanent electrical dipole moment of the molecule. So the dipole moment is a quantity that describes two opposite charges separated by a distance. तो
ये है हमारा डिस्टेंस, यानी कि एक जो है ये दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है, और इट इज जो डिस्टेंस है इसको हमने डिनोट किया है आर से. सो द डाइपोल मूवमेंट इज डिनोटेड बाय म्यू. is the mu is the product of magnitude of the separated charge and the distance separated charge and distance between the दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है. तो ये हमारा जो डिस्टेंस है ये r, और हमारा एक कंपाउंड का सपोज चार्ज नेगेटिव है, इस कंपाउंड का चार्ज पॉजिटिव है. तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड है. तो ये q इज द magnitude, q is the magnitude of the separated charge. सपोज जैसे हम लोग NaCl की बात करते हैं, है ना, तो NaCl जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, तो ये इजीली ब्रेक हो गया वाटर के प्रेजेंस में. तो यहाँ पे जो इनका इजीली जो सॉल्युबल हो रहा है, दैट मीन्स इनके बीच की बॉन्डिंग है वो इजीली ब्रेक हो गई है. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ सेपरेशन और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी मैटर करता है. ज़्यादा नज़दीक होंगे तो उनको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी. इनका डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसको एनर्जी ब्रेक करने के लिए हमें इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम लगेगी अगर इसका डिस्टेंस ज़्यादा है. वेयर Q मैंने आपको बताया, Q जो है हमारा मैग्नेटिक हो गया है और R हमारा दोनों के बीच का डिस्टेंस है. तो ग्रेटर द चार्ज लार्जर द डाइपोल मोमेंट बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड R. अगर Q बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा. सो ग्रेटर द चार्ज लार्जर विल बी डाइपोल मोमेंट एंड स्मॉलर डिस्टेंस लार्जर द डाइपोल मोमेंट. इन SI यूनिट Q is expressed in columns and R is in meters. So म्यू की डायमेंशन हो गई है C इंटू एम. ठीक है, यानी कि म्यू की हमारी म्यू की यूनिट है C इंटू एम, यानी कि हम इसको CM. इट इज़ एक्सप्रेस इन यूनिट. इसकी इनको कंबाइंड यूनिट को हम डीबे भी बोलते हैं. तो इसकी यूनिट हो गई है डीबे, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल D से. ओके. डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर यूनिट, ये एक वेक्टर यूनिट है. ओके. अब हम बात करते हैं मेजरमेंट, हाउ टू मेजर डाइपोल मोमेंट. हाउ टू मेजर डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे एक प्लेट फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, दीज आर द कैपेसिटेंस. ये मैं यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं इसका कैपेसिटेंस का. ये कैपेसिटेंस ऑफ गैस और अ सॉल्यूशन. ठीक है, दोनों का फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हमारे पास एक कंपाउंड है पॉजिटिव नेगेटिव ना, फिर अदर कंपाउंड पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, ये कंपाउंड्स हैं हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. तो यहाँ पे कोई भी चार्ज कैसे भी है, अब इसको हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगाया है इधर. ये हमारा इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन. सेम ऐसे ही यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, प्लेट हैं, नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन. ओके. तो अब या जब हम यहाँ पे करंट, ये जो कंडीशन है ये वाली कंडीशन है व्हेन स्विच ऑफ. स्विच ऑफ होगा तो ये पार्टिकल्स अपनी अपनी कंडीशन में ये अपने हिसाब से अपनी इधर उधर रहते हैं. लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे स्विच ऑन करते हो, व्हेन स्विच ऑन, तो ये सबकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. यानी कि नेगेटिव साइड पे दैट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव और इस साइड पे नेगेटिव, यानी कि इनकी डायरेक्शन सबकी
पॉजिटिव नेगेटिव, इन कंपाउंड इनकी सबकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देखो ये सबका मूवमेंट जो है वो ये चेंज हो जाएगा। तो सब ये अलाइन हो जाएंगे एक साथ में। तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट को। तो व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स दैट हैविंग अपोजिट चार्ज, दे अलाइन देमसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जैसे कि मैंने बताया कि ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड के अकॉर्डिंग जो है ये चेंज हो जाएगा। तो इन्होंने देखो ये they align themselves along the direction of the field. This process consume energy that it return to the electrical circuit when the field is switched off. और जैसे ही आप इसको स्विच ऑफ करेंगे तो ये दोबारा से अपनी इस कंडीशन में आ जाएंगे। फिर जब आप इसको स्विच ऑफ ऑन करेंगे तो ये दोबारा से अलाइन हो जाएंगे। तो इसके बीच में हमें ये पता चलता है कि ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है इसको ये अलाइन होने के लिए। तो when the field is switched off, an effect known as electrical capacitance, the measurement of the capacitance of a gas or a solution serves to determine the magnitude of the dipole moment of the substance. तो उस एनर्जी को हम उधर ये जो कैपेसिटेंस है अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें कि इसको कितनी एनर्जी लग रही है इसको दोबारा से अलाइन या दोबारा से इस फॉर्म में आने में, तो उससे हम उसका डाइपोल मोमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन व्हाट आर द एप्लीकेशंस? Applications of dipole moment is number one, for predicting the nature of the molecule. That means कि the measurement of dipole moment helps to distinguish polar or non-polar molecule, and molecule with zero dipole moment are not polar, while the molecule with a specific dipole moment is molecule is polar in nature. And पहला हमारा हो गया है कि आपको उस मॉलिक्यूल के नेचर को प्रिडिक्ट करना है ना, टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। सेकेंड वन है हम उसकी पोलैरिटी चेक कर सकते हैं, टू फाइंड आउट द या डिग्री ऑफ पोलैरिटी चेक करने के लिए हम डाइपोल मोमेंट चेक करते हैं। तो द मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट गिव्स एन आइडिया ऑफ द डिग्री ऑफ पोलैरिटी इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। द ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। देन थर्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं shape of molecules. So the dipole moment is used to find the shape of the molecules. If the molecules has a specific dipole moment, its shape will not be symmetrical. It may be curved or angular, and the molecules at zero dipole will be asymmetric and has a linear form. तो ये हो गई शेप। देन फोर्थ वन है कि जो उनके बीच का बॉन्ड है हम उसके बॉन्ड को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो प्रिडिक्ट नेचर ऑफ बॉन्ड, तो इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द एटम्स involved in a molecule. So the bond will be highly polar if the electronegative of two atoms are large. Okay, क्योंकि ये हमने यहाँ पे आपको ये बात की थी कि बीच के बॉन्ड को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने आज दो टॉपिक लिए हैं जिसमें फर्स्ट वन इज डाइपोल मोमेंट एंड सेकेंड वन इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इससे दोनों कंपाउंड से हम उसकी पोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। So, any questions?